Wow, it looked so tempting. Gujarati food rocks. You can't change the waves, but you can learn to ride them. Today is 21st of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, gratitude changes everything. आई हैव टू के बजाय अगर हम बोले आई गेट टू तो हमें ज्यादा फायदा होता है. वी आर ऑल लकीयर देन वी रियलाइज. हमें अपनी सक्सेस तो कम याद होती है और फेलियर ज्यादा याद होते हैं. Without gratitude, we can fail to appreciate what's right in front of us. Remember, gratitude is a currency that we can mint for ourselves and spend without fear of bankruptcy. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning, we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Shudder का मतलब होता है tremble, typically as a result of fear or revulsion. Parlous का मतलब होता है जोखिमी, full of danger और uncertainty. Disparaged मतलब अपमानित करना, regard और represent as being of little worth. Prodigious का मतलब होता है remarkably और impressively great in extent, size और degree. Redound मतलब सहायता करना, contribute greatly to a person's credit or honor. So ये vocab words हैं आज के लिए. Redound, prodigious, disparaged, parlous and shudder. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये CSAT है. Look at this paragraph carefully. For a citizenry to retain its trust in government, it must have confidence that those in public service are at all times acting in the best interest of the public. Very good line. As stewards of the public trust, government leaders and employees have a fiduciary responsibility to act in a manner that is fair and unbiased, that is loyal to the public by putting public interest before personal gain, and that fulfills duties of competency, integrity, accountability, and transparency. In fulfilling all these duties, public officials will encounter predictable ethical dilemmas which arise out of their role as a public servants. जब भी आरसी आता है, सबसे पहले आपको क्विकली उस पैराग्राफ को देखना चाहिए. इसके बाद आपको ऑप्शंस देखना चाहिए. ऑप्शंस में क्या है? Which of the following is the most logical and critical inference that can be drawn from the above passage? मोस्ट लॉजिकल और क्रिटिकल इन्फरेंस हो सकता है एक से ज्यादा सही लग रहे हैं, बट हमें मोस्ट लॉजिकल बताना है. अब देखिए, ये सरकारी एग्जाम है, तो मोस्ट लॉजिकल और क्रिटिकल इन्फरेंस वो होगा जो पॉलिटिकली भी करेक्ट होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज भी करेक्ट होगा, जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके विद इन होगा, जो हमारा जनरल विजडम होता है उसके विद इन होगा. ये किसी भी टाइप का आरोप प्रत्यारोप इस टाइप की बातें नहीं करेगा. सो लेट अस सी. Public service is an office of trust and it becomes difficult to govern once the trust is broken. एक इसमें बहुत नैरोनेस आ रहा है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ट्रस्ट को ब्रेक होना है, हमें एक्चुअली इन जनरल ब्रॉडर सेंस बताना था. तो यहाँ बस एक ही पॉइंट बताया है कि ट्रस्ट टूट जाएगा तो गवर्न नहीं हो पाएगा. एथिकल डिलेमा इज एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस. ये बड़ा मेच्योर और लाइक सेंसिबल ऑप्शन लग रहा है जो एक पूरे इस आर्टिकल का क्रक्स बता रहा है. It is impossible for public servant to always act in public interest because of the dilemma that confronts. Kind of आरोप लग रहा है कि ये impossible है और none of the above है. So the best option is B. A person has rupees 3,000. He invested 60% at 10% interest rate and rest amount at 15%. What is the total interest received at the end of year? बड़ा आसान सा सवाल है. 3,000 रुपए है तो पहले इन्वेस्टमेंट को 3,000 रुपए है और 60% 10% इंटरेस्ट पे किया है, तो इसका 60% निकाल लेते हैं 1,800 रुपए, और जो बाकी के 1,200 हैं वो 15% पे किया है. तो बस दो प्रिंसिपल आ गए, ये P1 है ये P2 है. PRT अपॉन 100 PRT अपॉन 100. टोटल इंटरेस्ट SI1 आएगा SI2 आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट 360 हो जाएगा. सो लेट अस फॉलो दिस फॉर्मेट. मैं डेली बेसिस में आपको 2 सवाल दे रहा हूँ, बट अब वो 2 सवाल मैं आपको देन एंड देयर सॉल्व करके भी बता दूंगा. ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो हम ऐसे पिक कर लेंगे कि एक आरसी और एक मैथ्स का सवाल, या जनरल मेंटल एबिलिटी और फिर एक मैथ्स. तो वी विल ट्राई कि 2 सच क्वेश्चंस वी सॉल्व ऑन डेली बेसिस. ये 15 सितंबर 2023 मेंस एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं. मैं बार बार सबसे बोल रहा हूँ, डजंट मैटर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है. अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम लिखने वाले हैं इवन 2024 में,
आपको मेंस की तैयारी तो करना ही है, और ये जो टाइम है जून से लेके सितंबर तक का टाइम, ये मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का टाइम होता है। तो इस टाइम पे हमें मेंस की तैयारी करना चाहिए, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जीएस 1, 2, 3, 4 और ऐसे को कंप्लीट करने का। बाय सितंबर, इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग द एग्जाम ऑन सितंबर, बट इस टाइम बाउंड मैनर में आपका 1250 नंबर यहाँ पे कवर हो रहे हैं। सो दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो यू कैन ज्वाइन दीज क्लासेस, और ये सारा होमवर्क आप टाइम पे कंप्लीट करिए। अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं तब भी आपके पास सारी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेगी। एट द सेम टाइम जो एक्स्ट्रा हम जो सेशंस ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज और एटसेट्रा, उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग एटसेट्रा में। Then this is prelims 1. This is a no-brainer. 360 degree all the aspects of this examination, चाहे वो core subjects हो, current affairs हो, MCQ हो, CSET हो, mentorship, reading, writing, personality, ये सारे 7 पिलर्स हम एक जगह पे कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, हम 10 जगह से चीज़ों को देखते हैं ना, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है और एफिशिएंसी नहीं आती। वी आर वेरी वेरी रेगुलर, वी आर वेरी डिसिप्लिन, our track record is also really good, so you can join these classes, आपको बहुत benefit होगा। ओके, देन ये ज्योग्राफी है, इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन का संडे को क्लास होगा, ये प्रीलिम्स 1 बैच का एक्सक्लूसिव रहेगा। दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। तो यहाँ बात करते हैं इमर्जिंग मार्केट्स की। इमर्जिंग मार्केट, इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, द ब्रेकआउट स्टार ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स। आपको पता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन कंबाइंड विद एन इम्प्रूविंग रेगुलरिटी एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो ये बोला जा रहा है ना 75 to 100 जो अमृतकाल इंडिया का होने वाला है, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। इंडिया की इकोनॉमी ऑन अ पाथ ऑफ 5 to 6% एनुअलाइज्ड ग्रोथ में है, ये फास्टेस्ट है इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। इवन यूएसए, यूके, दे आर स्ट्रगलिंग, इंडिया इज डूइंग रियली वेल। तो इंडिया का ब्रेकआउट decade is here, political stability, pro business reforms, technological innovation, India is set to shine। तो बिगेस्ट एडवांटेज है हमारी एज, मीडियन एज इंडिया में 29 ईयर्स है, यंग एंड डायनामिक पॉपुलेशन है, तो ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो इंडिया का जो इक्विटी मार्केट भी काफी अच्छा कर रहा है, 1 ट्रिलियन अभी एज ऑफ May 31, 2023 मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने हिट किया था। दिस इज रियली नाइस। Personnel of which branch of the Indian Armed Force is also referred to as हिमवीर। हिमवीर किसको बोलते हैं, हिम मतलब स्नो, हिमालय, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनएसजी। तो ये जो तिकड़म्स होती है, गैस वर्क होता है, ये भी तब होता है जब आपको ब्रॉड नॉलेज होता है। तो नॉलेज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमें डेली बेसिस पे अपना नॉलेज बेस बढ़ाना है। एट द सेम टाइम हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी ध्यान रखना है। आप हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब, 29 दिसंबर टू 1 जुलाई 1906, फ्रीडम फाइटर थे आप लीडिंग फिगर थे नेशनलिस्ट मूवमेंट में, आप फर्स्ट इंडियन थे टू बी अपॉइंटेड एज अ परमानेंट लॉयर। सी, परमवीर चक्र कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब का ये कोट है, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई स्वेयर आई विल किल डेथ। परमवीर चक्र ये हाईएस्ट ऑनर होता है बैटल टाइम पे, वॉर टाइम पे दिया जाता है किसी भी सोल्जर को, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पर्सनल को, फॉर दिस परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। देन दिस इज कुमारगिरी। सो दिस इज कुमारगिरी एंड कुमारीगिरी, ये किन केव्स को बोला जाता है उड़ीसा की? आंसर उदयगिरी, खांडगिरी, बाराबर, नागार्जुनी या बादामी केव्स। इंश्योरिंग बेटर कनेक्टिविटी फॉर बॉर्डर विलेज के लिए डीडी फ्री डिश है, 1.5 लाख फ्री दूरदर्शन डीटीएच कनेक्शंस है, फार फ्लंग एरिया इन विलेजेस इंडो चाइना बॉर्डर पे ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इंडिया श्रीलंका का अभी क्लोजर और डीपर इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, कनेक्टिविटी इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो की इनेबलर अक्रॉस डायमेंशंस क्या है? एमओयू जैसे अभी साइन हुआ, त्रिकोणामाली एज अ रीजनल हब ऑफ इंडस्ट्री, एनर्जी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एमओयू साइन हुआ रिन्यूएबल एनर्जी पे और सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट पे भी। अग्रीमेंट हुआ है जैसे एनआईपीएल और लंका पे और इंडिया का यूपीआई बेस्ड पेमेंट, तो इससे पेमेंट सिस्टम ईजी होगा। श्रीलंका में इंडियन टूरिज्म भी काफी जाता है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पे अग्रीमेंट हुआ और नागापट्टिनम फेरी सर्विस हो रहा है, फेरी सर्विस बिकॉज डिस्टेंस इज लेस, अक्सर तमिलनाडु टू श्रीलंका फेरी सर्विस भी होता है। इसके अलावा कनेक्टिंग फ्लाइट्स है चेन्नई और जाफना की, मल्टी सेक्टोरल पैकेज भी दिया गया है तमिल एंड फॉर ईस्टर्न प्रोविंसेस के। तो सी, जब भी हमें बायलैटरल रिलेशंस की बात करनी है मेन स्टूडेंट्स, तो आपको हमेशा अपनी बातें कैटेगरी में रखनी चाहिए। कैटेगरी मतलब हेडिंग सब हेडिंग में, एनर्जी एंड पावर कनेक्टिविटी,
trade, economic and financial connectivity, maritime connectivity, air connectivity and people to people connectivity. तो ये outcome of the visit बताया गया है. नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर. अभी इसके जितने भी नोट्स पेंडिंग है ना, अभी मैं वीकेंड्स में सारे कंप्लीट कर दूंगा उससे. तो दिस इज फ्राइडे जुलाई 21st. सी दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. और एज अ सोसाइटी ये हमसे एक सवाल भी पूछता है. कहीं भी वायलेंस है, कहीं भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, कहीं भी अदर टाइप ऑफ लॉ एंड ऑर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, किसी भी टाइप का राइवलरी है, किसी भी टाइप का डिसऑर्डर है, क्राइम है, एनीथिंग, इवन डोमेस्टिक वायलेंस भी है, हर जगह व्हाई इट इज विमेन हु पे द प्राइस, विमेन हु पे द प्राइस. विमेन को एज अ इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया जाता है? तो यहाँ पे यही सवाल पूछा है. यूजिंग विमेन एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परपेट्रेटिंग वायलेंस in a charged atmosphere is simply unacceptable in a constitutional democracy. तो ये बिल्कुल भी acceptable नहीं है. Using women as instruments of perpetrating violence in a charged atmosphere is simply unacceptable in a constitutional democracy. It doesn't matter वहाँ पे क्या war है, civil war है, this and that. The point is, this is again not acceptable. We direct both the center and the Manipur government to take immediate steps and to apprise the court of the action taken before the next date of listing. So ये बहुत unfortunate है. This is not at all acceptable. Gross constitutional violation है और infraction of human rights है. So कोर्ट ने बहुत strong words में यहाँ पे बोला है कि this is not acceptable. यहाँ acceptable नहीं है. Law will act with full might on guilty. प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये दिस स्टेटमेंट आया है. एंग्विश एंड एंगर, देन फुल माइट से यहाँ पे दिस गवर्नमेंट को स्टेप इन करने की जरूरत है. व्हाट हैपेंड इन मणिपुर कैन नॉट बी फॉरगिवन. एंड देन मॉनसून सेशन में बताया कि सच टाइप ऑफ लाइक दिस ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड दिस टेंडेंसी ऑफ यूजिंग विमेन एज इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल. देन यहाँ पे कुछ अरेस्ट भी हुए हैं. दिस इज द थिंग. Constitution bench to take up Delhi government's challenge to center's ordinance on services. See, तो यहाँ दिल्ली और सेंटर का ये टसल चल रहा है. नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आ रहा है, अभी इंट्रोड्यूस होने वाला है. इस पे वेट एंड वॉच करते हैं. सच टाइप ऑफ न्यूज को जब पूरा न्यूज कंप्लीट हो जाए तब बात करनी चाहिए. लेट अस वेट एंड वॉच. अभी ये ऑर्डिनेंस आएगा, वी विल सी. प्रॉब्लम ये है एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो यूटी ऑफ दिल्ली है, आर्टिकल 239 AA, इसमें कुछ पावर, एक्सक्लूसिव पावर दिल्ली के पास नहीं होती है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हुआ, पुलिस हुआ, एटसेट्रा. और उससे एडमिनिस्ट्रेटिव कई बार चैलेंजेस आ जाते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है और ऑफिस ऑफ गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली. सो लेट अस सी. तो जैसे यहाँ पे भी है दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड दिल्ली के एलजी. देन दिस इज SC steps in to name pro tem DERC head. What is the meaning of this pro tem? प्रोटेम स्पीकर भी हम पढ़ते थे. प्रोटेम का मतलब क्या होता है? जो प्रोटेम स्पीकर होता है, इस पे एक शॉर्ट नोट बनाइए. प्रोटेम स्पीकर की स्पेशलिटी क्या होती है? लोकसभा में हम देखते हैं ना प्रोटेम स्पीकर. सो व्हाट इज दिस प्रोटेम स्पीकर? आंसर. क्या ये इलेक्टेड होता है, क्या ये नॉमिनेटेड होता है, क्या तरीका होता है? सीनियर मोस्ट का मतलब क्या होता है? आंसर प्रोटेम स्पीकर. दिस इज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट. लैंडस्लिप ट्रिगर्ड हेवी रेन दिस बेरी विलेज इन महाराष्ट्र. दिस इज अगेन डिजास्टर. ये है कच्चा तीवू, तमिल इशू ड्यूरिंग श्रीलंकन प्रेसिडेंट्स विजिट. चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया. तो ये कच्चा तीवू आइलैंड है और ये कच्चा तीवू आइलैंड एक बोन ऑफ कंटेंशन हो जाता है इंडिया और श्रीलंका. पहले अनइनहेबिटेटेड था बट यहाँ पर फिशरी बहुत अच्छा है, तो अक्सर इंडियन फिशरमैन यहाँ पे आते हैं. और बिकॉज अभी यहाँ पे श्रीलंकन नेवी एक्टिव रहती है तो एट टाइम्स फायर्स ओपन हो जाते हैं और टेंशन हो जाता है. तो यहाँ पे एक डिसीजन लेना जरूरी है. Regular patrolling, establishment of communication channels and installation of warning system could significantly reduce incidents of harassment and apprehension. तो ये कच्चा तीवू आइलैंड है. एक वॉइस ये भी आता है क्या कच्चा तीवू आइलैंड को फिर से इंडिया को अपने jurisdiction में ले लेना चाहिए. Drone CCTVs to monitor Muharram processions. So drones and CCTV, use of technology for this public crowd gathering. देन हैंडक्राफ्टेड विद डिग्निटी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है. ये है पश्मीना शॉल्स. रिक्रिएट ऑथेंटिक पश्मीना शॉल्स दैट आर मेकिंग अ कमबैक इन द वैली. सो दिस इज रियली गुड. ये जो पश्मीना शॉल्स हैं,
या फिर जैसे देखिए यहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है, यहाँ पे क्या एक्टिविटी है, दिस जो क्लोथ्स और दिस गारमेंट्स एक्सेट्रा जो होता है, टेक्सटाइल जिसको हम बोलते हैं, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इससे मास स्केल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो दिस इज रियली गुड कि विमेन आर्टिसंस इन द वैली, यहाँ पर हैंड स्पिन यार्न यूज्ड इन द वीविंग पश्मीना शॉल। ऐसे करके यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आ रही है, विच इज रियली रियली नाइस। सी, पश्मीना शॉल गिव कश्मीर इट्स आइडेंटिटी, द हैंड स्पिनिंग ऑफ द कश्मीर वुल क्रिएट्स मैजिक। क्या आप बता सकते हो ये जो पश्मीना शॉल का जो ये फैब्रिक है, वुल है, ये किस एनिमल से आता है, किस एनिमल से आता है? ओके, सी यहाँ पे लिखा भी है, रॉ पश्मीना प्रोक्योर होता है हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑफ लद्दाख से, कारगिल और लेह के जोन से। ओके, सो दिस इज अगेन, इसका बहुत डिमांड होता है और ये काफी प्रीमियम भी मानी जाती है। देन दिस इज इन दिल्ली 6, this is editorial, this is rustler's case, a lot in time, this is no quick fix, regular talk है। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर मस्ट बी incentivized to see value in invention। सी, गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट पुल द इकोनॉमी, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन जो टेबल हो रहा है, अगेन एक बिल आ रहा है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। द प्रॉब्लम इज हम R&D में इतना इन्वेस्टमेंट करते नहीं है जितना हमें करना चाहिए। R&D से क्या होता है, नई चीजें आती है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इंजीनियरिंग भी होता है, हमें प्रमोट करना चाहिए, आप हायर एजुकेशन करो, PhD करो इफ यू हैव गॉट इंटरेस्ट इन दिस, सो दैट आप R&D में आगे करें, आगे हम बढ़े। तो 50,000 करोड़ का है, नेशनल साइंस फाउंडेशन है, इतना बजट है। ओके, देन इसके अलावा इन कंट्रीज सच एज चाइना, US, इजराइल, प्राइवेट सेक्टर 70% ऑफ रिसर्च एक्सपेंडिचर करता है, इंडिया में केवल 36% है, लेस देन हाफ, विच इज नॉट राइट। तो प्राइवेट सेक्टर को भी R&D में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो CSR का पैसा होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आप इधर डायरेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स इंसेंटिव्स भी दे सकती है, फंड्स दे सकती है, एटसेट्रा। The challenge in India is not the absence of such companies, but the fact that there are too few of them. तो we need to have this culture जहाँ पे जो बड़े बड़े corporates हैं, they are well like financially well हैं, उनको CSR के थ्रू या अदर एक्टिविटीज से फंड डाइवर्ट करना चाहिए towards this R&D। ऑर्गेनाइजेशन जैसे NRF होगा, इस बिल में ये प्रोविजंस आ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को R&D के लिए हम बढ़ाएंगे। फिलेंथ्रोपी इज अनलाइकली टू बी द पेनेशिया। इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन लॉ नीड्स रिफाइनमेंट। अगेन इसमें बात है डेटा प्रोटेक्शन बिल की, इसमें भी मैं अभी इतनी ज्यादा बातें इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लेट अस वेट एंड वॉच, ये बिल आने देते हैं। अदरवाइज इससे पहले ही हम प्री कंसीव्ड बहुत सारी बातें मान लेते हैं जो होती नहीं है, फिर टाइम वेस्ट होता है। तो यूरोप का जो है GPDR, ग्लोबल जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये एक टेम्पलेट माना जाता है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए। तो यूरोप का जो GPDR है, इसके बेसिस में हम इंडिया में भी डेटा प्रोटेक्शन के स्ट्रॉन्ग लॉज लाना चाहते हैं। तो इसके लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है। डिजिटल, अक्सर हम लोगों को समझाते हैं प्राइवेसी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट। तो ऑनगोइंग सेशन पे इस टाइप का बिल अभी आएगा। लेट अस वेट, 28 से स्टार्ट हो रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है, लेट अस वेट। तो इसमें बहुत सारे एप्रीहेंशंस भी हैं। एप्रीहेंशंस ये होते हैं कि पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज पर्सनल डेटा से आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। डेटा इकोनॉमी है, वेरियस टाइप ऑफ डेटा हम यूज करते हैं, पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा भी होता है। तो कई बार क्या होता है, प्रोफाइलिंग होने लग जाती है, टारगेट, प्रोफाइल, प्रेडिक्ट, मॉनिटर करते हैं उनका, लाइक जो डेटा पैटर्न है उसको मॉनिटर करते हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार ब्रेन वॉशिंग भी होती है, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पर्सन का प्रोफाइलिंग कर लिया कि दिस पर्सन इज से इस एज ग्रुप का है, इस जेंडर का है, इस इकोनॉमिक ब्रैकेट में आता है, इस जगह वर्क करता है, इस एग्जाम्स या इन सारी एस्पायरेशन से ड्रिवन है। इससे विद द हेल्प ऑफ डेटा एंड AI बहुत अच्छे से उस पर्सन की प्रोफाइलिंग की जा सकती है। और फिर आप देखना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी एक गूगल में कुछ सर्च किया, फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया एक वर्ड कि यू वांट अ न्यू लैपटॉप। अब आप चाहे वो इंस्टाग्राम में आओ या फिर यूट्यूब में आओ या फिर से आप फेसबुक में आओ, ट्विटर में आओ, एवरीवेयर आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखने लग जाते हैं कि यू कैन बाय दिस लैपटॉप, यू कैन बाय दिस लैपटॉप, यू कैन बाय दिस लैपटॉप। सो इट मीन्स कि देयर इज सम बैकएंड में टेक्नोलॉजी है, जो एल्गोरिदम है, जो आपके सारे डेटा को क्रंच कर रही है और आप पे नजर रख के रखी हुई, निगरानी कर रही है। तो इजंट इट अ वायलेशन ऑफ राइट प्राइवेसी?
अब यहाँ तो शॉपिंग है, बट एट टाइम्स सेंसिटिव डेटा भी होता है। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बहुत सारा सेंसिटिव डेटा हैंडल करना चाहिए। सेंसिटिव डेटा हैंडल करने का उनका मैंडेट होता है, डिसीजन मेकिंग है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, नेशन की सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा है। बट एट द सेम टाइम हम डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया में ओवर शेयर भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, चॉइसेस, प्रेफरेंसेस एटसेट्रा। सो इन अ वे हम खुद को भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उसको भी एक्सपोज कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज, इन सारे डेटा पे एक जो प्राइवेट डेटा है इस पे एक लॉ, स्ट्रिंजेंट लॉ होना ज़रूरी है। सेम इज़ विद स्टूडेंट्स के कई बार इमोशन से खेला जाता है। स्टूडेंट्स को कई बार फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। कई बार बहुत फैंसी, ग्लिटरी एंड ऑल दीज थिंग्स, कई बार पाइप्ड ड्रीम्स दिखाए जाते हैं। सो द पॉइंट इज, इन अ वे ये सारा भी प्रोफाइलिंग होता है डेटा से। कई बार आपको कुछ नोट्स चाहिए, बट पहले वो बोलेंगे आप अपना नंबर दो, अपना ईमेल आईडी दो, देन ओनली आपको ये नोट्स मिलेंगे। सो इन अ वे वो आपको लुक्रेट करते हैं कि फ्री है, फ्री फ्री फ्री। और फ्री इज वेरी वेरी, जब भी फ्री वर्ड आता है ना, बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए, बिकॉज फ्री मतलब देर इज सम हिडन कॉस्ट। इट कुड बी योर टाइम, इट कुड बी योर करियर। सो द पॉइंट इज, ये जो फ्री चीज होती है ना, इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। द पॉइंट इज कि अगर ऐसा फ्री के नाम पे आप अपना डेटा शेयर कर रहे हो, एप्लीकेशंस में हम फ्रीली अपना सारा डेटा देते हैं, आपके इतने सारे मोबाइल ऐप्स जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, आप उसकी रिव्यू करो, आपने उनको कौन सी सारी परमिशंस दे रखी है। मेनी मोबाइल ऐप्स के पास सारा एक्सेस होगा आपके फोटोग्राफ्स का, आपके सारे एसएमएस का, आपके सारे कॉल लॉग्स का, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स का। सो इजंट इट कि ये वायलेशन हो रहा है आपकी प्राइवेसी का? उस ऐप को क्या जरूरत है आपके सारे फोटोग्राफ्स एटसेट्रा एक्सेस करने की? दिस इज अगेन वन थिंग। तो लिमिटेड रीच ऑफ डेटा प्रोटेक्शन है, तो हमें टू प्रोन्ज्ड मेथड चाहिए। पहला, लॉ और जो एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, नियम है, ये स्ट्रांग हो, स्ट्रिंजेंट हो, बिकॉज इंटरनेट इज अ फास्ट इवॉल्विंग वर्ल्ड। सो डेटा भी अप टू डेटेड होना चाहिए, रूल्स अप टू डेटेड होना चाहिए। सेकेंड, हमें यूजर एंड यूजर में भी अवेयरनेस लाना है, और जो भी जैसे कंप्लेंट्स आती है उनको भी क्विकली हमें एक्सेस करने की जरूरत है। बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस भी आते हैं। ओके, तो कई बार ये डेटा आपका सेल होता है और ये एक बहुत बड़ा दिस ग्रॉस वायलेशन ऑफ लॉज हो जाता है। तो इसमें अभी बस यही बोला है कि इधर गैप्स हैं, उन गैप्स को फिल करना चाहिए। ये डेटा अभी प्रेजेंट होने देते हैं, वी विल रिविजिट दिस अगेन। डीलिमिटेशन क्वेश्चन सेटल्ड। तो सी, अभी हम बस इतना जानेंगे डीलिमिटेशन क्या होता है। चुनाव होता है तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, इसको डीलिमिटेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे बनाई जाती है कि जनसंख्या या अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स को ध्यान में रखकर एक पैरिटी आ जाए सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो डीलिमिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन अ रीसेंट सेंसस। सेंसस में केवल पॉपुलेशन नहीं होती, पॉपुलेशन के बहुत सारे पैरामीटर, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती है। ईच सीट हैज एन ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स, तो इसको बोलते हैं डीलिमिटेशन। जो लास्ट डीलिमिटेशन हुआ था 1976 में हुआ था। करंट बाउंड्रीज जो थी वो 2001 के सेंसस के हिसाब से बनाई थी। नंबर ऑफ लोकसभा स्टेट असेंबली जो सीट्स भी होती है वो हमने फ्रोज कर दिया। फ्रोज इसलिए किया 71 सेंसस में, बिकॉज नॉर्थ की पॉपुलेशन तो बढ़ गई, साउथ की पॉपुलेशन रिलेटिवली स्टेबलाइज हुई, तो इससे एक डिसबैलेंस आ सकता था। तो हमने 1971 का सेंसस फ्रीज कर दिया फॉर दिस नंबर ऑफ सीट्स, और डीलिमिटेशन आखिरी जो हुआ था वो हुआ था 1976। इसके बाद फिर 2001 सेंसस में हमने रीड्रॉ किया था। तो सेंसस 2026 में हो सकता है, अभी 2026 तक ये फ्रीज है, और सेंसस भी लेट ही चल रहा है बिकॉज अब जनरल इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो हमें फिर से डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को करना पड़ेगा। 76 का डीलिमिटेशन हुआ था, 71 का पॉपुलेशन डेटा था, और उसके हिसाब से बहुत सारी सीट्स जो अलग अलग राज्यों को मिली है वो फ्रीज कर दी गई थी अंटिल 2026। साउथ की जो ग्रोथ है वो कम है, नॉर्थ की ग्रोथ ज्यादा है, तो 2026 में नंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा सीट्स भी बढ़ने वाली है, और इसी के कारण हमने अभी एक नई पार्लियामेंट भी बनाई है। तो ये है डीलिमिटेशन। आप बताओ, डीलिमिटेशन का जो डिसीजन होता है वो हाई कोर्ट में चैलेंज होता है या फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज हो पाएगा एक्सक्लूसिवली? वाटर अंडर द ब्रिज, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली क्लीन कर रहा है। रेड फोर्ट फ्लड वाटर जब रिसीड हो रहा है यमुना रिवर। A warning on Delhi's projected losses due to climate change.
Maximum proportion of CSR money going to green cause. EU plans to set up defense fund in aid of Ukraine. तो लड़ तो यूक्रेन रहा है, बट जो शब्द हैं, जो आर्म्स एंड वेपन्स हैं, वो नेटो के हैं. न्यूयॉर्क सिटी अग्रीज ऑन कॉम्पनसेशन फॉर रेशियल इंजस्टिस, और ये है डिस्कॉम्स. देन व्हाई इज कर्च ब्रिज अटैक सिग्निफिकेंट? तो व्हाट इज कर्च ब्रिज? देखिए, इस ज्योग्राफी को समझते हैं अच्छे से. ये सी ऑफ अजोव है, ये क्रीमियन पेनिनसुला है. पेनिनसुला मतलब थ्री साइड वाटर. और ये है रशिया, दिस इज रशिया. और यहाँ नीचे ब्लैक सी है, और ये है सी ऑफ अजोव. और यहाँ पे तमान बे है, तामन बे है. अब ब्लैक सी से अजोव सी जाना है हमें, तो एक नैरो वाटर बॉडी को क्रॉस करना पड़ेगा. एजोव, सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी. और ये जो नैरो वाटर बॉडी होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट, और इस स्ट्रेट का नाम है कर्च स्ट्रेट. सो व्हाट इज कर्च स्ट्रेट? इट इज अ नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी. और ये वाटर बॉडी के लेफ्ट और राइट में क्रीमियन पेनिनसुला है टुवर्ड्स वेस्ट, और ईस्ट में है रशिया. अब ये जो क्राइमियन पेनिनसुला है, ये जैसे ऐसा बड़ा मैप है, दिस इज क्राइमियन पेनिनसुला. ये रशिया से ऐसे कनेक्टेड है. ये क्राइमियन पेनिनसुला रशिया ने 2014 को एनेक्स किया था, और जुलाई 17 में ये कर्च ब्रिज बना. और इससे क्या हुआ? रोड ट्रांसपोर्टेशन और जनरल कनेक्टिविटी बेहतर हो गई रशिया और दिस क्राइमिया की. अब इस पे अटैक होता है, ऐसा बोला तो गया है, दिस इज बाय यूक्रेन, सो दैट वो रशिया की जो कनेक्टिविटी है विद कर्च, उसको डिस्ट्रॉय कर सके. सो दिस इज देयर. तो कर्च ब्रिज पे अभी ऐसा अटैक हुआ. ये रशिया एंड यूक्रेन का वॉर है. तो कर्च ब्रिज which links the Russian mainland to the Crimean Peninsula in the Black Sea came under attack last week. Waterborne drones struck the Sol Bridge. Ukraine has not taken responsibility for the attack, but indirectly, the bridge is important to Russia for symbolic administration and operational reasons. तो one of the key goal है यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव. तो ये फाइट चल रहा है अभी यहाँ पे. देन जैसे ओपन एआई का एआई है चैट जीपीटी, ऐसे मस्क एक्स एआई करके भी एक न्यू आ रहा है. बर्न्ड एंड बर्न्ड दोनों मोरलेस इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं. जनरली जब हम कोई मैसेज देना चाहते हैं कि जॉब इज डन, सो शी बर्न्ड हर फिंगर्स लाइक दैट. द फायर बर्न्ड ब्राइटली, हम बर्न भी बोल सकते हैं. अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है. मोर इन मोस्ट केसेस हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. देन नलीफिडियन, इसका मतलब है हु हैज नो फेथ इन एनी रिलीजन. तो द पॉइंट इज कि नल मतलब जीरो, फाइड मतलब दिस फेथ. तो किसी भी फेथ में, किसी भी रिलीजन पे कोई भी फेथ नहीं है, तो उसको ये वर्ड बोल सकता है. ओके ओके. देन लाइक दिस इज, लेट मी डिस्कस रीच. रीच मतलब कितना एक्सेस है. रीच के मल्टीपल मीनिंग्स भी हो सकते हैं. रीच का मतलब गो एज फार. जैसे व्हेन आई रीच्ड कैलकाटा, कैलकाटा में जब मैं पहुंचा. इट टुक मी 3 days टू रीच हियर. यहाँ पहुंचने में 3 दिन लगे. रीच ऑल्सो मीन्स टू गेट इन कॉन्टेक्ट विद, लाइक आपको रीच आउट करना है, मिलना है. शेयर सृजन इंडिया वंस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, वी हैव टू रीच आउट टू मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो सारे लोग अपने फ्रेंड्स, ग्रुप्स एटसेट्रा सब जगह सृजन इंडिया के वीडियोस, आप न्यूज़पेपर वीडियो शेयर. टेल देम अबाउट सृजन इंडिया वन, क्वालिटी एजुकेशन learning, quality learning and education. Yes, and our purpose, the purpose of education is to make good human beings with skills and expertise. Okay, ये जरूरी होता है एजुकेशन में. रेस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स होना बहुत जरूरी है. सो रीच, वी हैव टू इंक्रीज अवर रीच, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सो रीच ऑल्सो मीन्स टू स्ट्रेच आउट, मे बी फॉलोड बाय आउट और फॉर हो सकता है. तो मतलब टू गेट इन कॉन्टेक्ट विद. ओके, तो दिस इज देयर. अब my house is within the reach of my office. Keep the medicine beyond the reach of children. Okay. Then obtuse मतलब lacking an insight or slow to understand. Dim, dull, dense. All right. Then this is Chandrayaan finishes 4th orbit raising maneuver. Supreme Court ने कहा चीता को नई लोकेशन पे ले जाया जाए. Center bans export of non-basmati white rice to control price rise in India. तो राइस का, नॉन बासमती का भी एक्सपोर्ट कम हो रहा है. फ्रेश कंसल्टेशन है यूसीसी पे. And then this is world news. Swedish embassy in Iraq attacked, envoy expelled. Actually ये बात है, ये जितने भी होली स्क्रिप्चर्स होते हैं, इनकी रिलीजियस वैल्यू होती है, इनसे फेथ एसोसिएटेड होता है. सो इट इज अवर ड्यूटी कि वी रिमेन रेस्पेक्टफुल. वी रिमेन रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन. दिस इज द डिफरेंस. दिस इज द डिफरेंस जो इंडिया और अदर कंट्रीज में. इंडिया में हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म देखते हैं. पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि वी हैव टू बी रेस्पेक्टफुल. इट डजंट मैटर किस रिलीजन का है, हम डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं. हमारा ये पर्पस रहता है कि वी रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजियस बिलीव्स एटसेट्रा.
तो रिलीजियस फेथ है, सिंबल्स है, इन सब का हम प्रॉपर ड्यू रेस्पेक्ट करते हैं। तो दैट इज वाई इंडिया ने भी इस मैटर में कहा था क्लियर वर्ड्स में कि हम इसको एनकरेज नहीं करते हैं। इंडिया की जो वैल्यू सिस्टम है वो ये है कि वी रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। Putin opted out not to jeopardize summit. Russia this Ukraine third night, and this is China doesn't want a trade war with USA. Wagner and Belarusian military train together. See, कई बार जैसे ये न्यूज भी आया था, बहुत क्लिक बेट्स होता है, हाइप होता है, दिस एंड दैट। इट इज नॉट कि एज एन एवरेज रीडर, एवरेज न्यूज जंकी हमको इन चीजों को नहीं देखना है, बट स्पेशली अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट है, एग्जाम रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो सच टाइप ऑफ न्यूज होती है ना, ये इतनी वैल्यू की नहीं रहती है आप लोगों के लिए। हमें न्यूज को सेटल होने देना चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज नहीं होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे एक नया डेवलपमेंट है। सो दिस इज मिस्टर शी ओल्ड फ्रेंड, एंड देन तो दैट इज वाई एट टाइम्स मैं चीजों को पर्पसफुली स्लो करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज नहीं करना है हमें, सेंसेशनलिज्म नहीं करना। लेट अस वेट एंड वॉच, कोई जल्दी नहीं है, आज नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन में न्यूज़पेपर में सारी चीजें कवर हो जाती है। So all we have to do is have some patience, do it on daily basis. This helps a lot. Slowing down at clients per Infosys to cut FY24 guideline. And this is RIL Financial Value, Hindustan Unilever. And this is news. This is sports news. यहाँ पे बात है death by water awareness can prevent drowning. जो डूब जाते हैं उन कैजुअलिटीज को हम कर सकते हैं। सिमिलरली हम सबको स्विमिंग सीखना चाहिए। स्विमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबॉडी शुड लर्न स्विमिंग। स्विमिंग आना बहुत जरूरी है ताकि हम बेसिक खुद को बचा पाए। ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट हमें स्विमिंग, बेसिक स्विमिंग आना चाहिए। पोस्ट कोविड कॉर्पोरेट्स बिगिन ऑफरिंग ओपीडी बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज, और यहाँ पे सेंटर दिस पॉजिटिव इम्पैक्ट। ऑल राइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। हम एंटायर न्यूज़पेपर कवर करते हैं, ऑल टाइप ऑफ न्यूज। तो दिस इज ऑल टाइप ऑफ न्यूज रिलेटेड टू अवर सिलेबस। सो दिस इज अ रियली गुड वे, रियली गुड वे। आंसर राइटिंग में अब हम आते हैं 18 जुलाई। 3 सवाल थे, नीति आयोग, अरेबियन पेनिनसुला और आईएसआरओ। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बट द पॉइंट इज इसमें भी डिफिकल्टी आती है बिकॉज हम डिसिप्लिन और रेगुलरिटी में लैक करते हैं। मैं हर स्टूडेंट को बताता हूँ, आप बहुत फैंसी बड़ी बड़ी चीजों करने के बजाय आप छोटी छोटी चीजें डेली करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, राइटिंग करोगे, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ोगे, डिसिप्लिन से रोज 3 से 4 घंटे पढ़ोगे, यूपीएससी आपके लिए केक वॉक होगा। बट हम इस माइंडसेट से आएंगे कि यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, कंपटीशन है, डिफिकल्ट है, और फिर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने की कोशिश करेंगे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, हफ्ते भर चलती है, इसके बाद ये डेली बेसिस पे नहीं हो पाती है, और फिर आप मैदान छोड़ के भाग जाते हो। आई सी 99% स्टूडेंट्स, दे आर वेल केपेबल, वेल मोटिवेटेड, एवरीथिंग इज गुड, जस्ट वो बहुत एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है उनका कि यूपीएससी है मतलब बहुत हाई फाई चीजें करनी पड़ेगी, और वो उस हाई फाई के चक्कर में छोटी छोटी चीजों में भी चोक करते हैं, वो नहीं लिख पाते हैं। आप खुद ही देखो, अरेबियन पेनिनसुला आपको बहुत अच्छे से पता है, अभी इसमें एक पेज बिना किताब खोले अरेबियन पेनिनसुला का आप लिख के बता दो। उसकी राइटिंग सही होनी चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, उसमें वर्ड चॉइसेस सही होनी चाहिए। जस्ट डू इट, अरेबियन पेनिनसुला, एवरीबॉडी नो। ये 3 ऑप्शंस है, अपनी पसंद का कोई भी ऑप्शन ले लो। इसरो पे आप मुझे एक पेज लिख के बता दो। अगर आपने एक पेज लिख लिया, उस एक पेज को पढ़ के बताओ। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हो तो अच्छी बात है, पर अगर लग रहा है नहीं है तो आपको डेली आंसर राइटिंग करना चाहिए, डेली आंसर राइटिंग करना चाहिए। ओके, सो सी राम नरेश, देखो दिस इज रियली गुड। चीजों को ना एक्चुअली एक कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी होता है। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जब से डिजिटल मीडिया आया है ना, सब चीजें हवा में है, हवा में। ये चीज एग्जाम आते आते आपका बहुत एंजाइटी लाएगी आपको। सो लिखना बहुत जरूरी है। सी नीति आयोग, नीति आयोग बहुत अच्छे से लिखा है राम नरेश। देखो हैंड राइटिंग अच्छी होती है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, अंडरलाइनिंग ठीक होती है, आपकी हैबिट्स अच्छी बनती है। गुड। अरेबियन पेनिनसुला, देखो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम, वेरी गुड, सिग्निफिकेंस। राम नरेश की कॉपी बहुत अच्छी होती है, दिस इज रियली रियली गुड। आप ऐसी कॉपी रियल एग्जाम में लिखो, आप बहुत अच्छी टॉप रैंक से क्वालिफाई करोगे, वेरी गुड। सिमिलरली मंजू का भी कॉपी देखो, एक दूसरे से सीखो, दिस इज सो गुड, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव बताया है ना। लिखना हमेशा स्ट्रेट चाहिए, इवन दो हम इसको ऐसे भी बना रहे हैं, बट ये जो लिखा है ना, इसको हमेशा हॉरिजॉन्टल लिखना है। लिखना कभी भी वर्टिकल नहीं है, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे उसको पेज घुमाना नहीं पड़े, वो उसको दिख जाए, सामने दिख जाए। ओके, दिस इज गुड। देन इसके बाद नीति आयोग पे बनाया, वेरी गुड। दीपेश इज अगेन सो सिस्टमैटिक, वेरी वेरी गुड। सारे तीनों देखो, डायग्राम भी है अरेबियन पेनिनसुला, बहुत अच्छा कर रहे हो दीपेश।
जितनी भी पुरानी कॉपीज है ना, सबको फाइल भी करते जाओ, वो घूमने नहीं चाहिए पेजेस। नीति आयोग, अमरजीत ने देखो कितने अच्छे से शॉर्ट। तो आप एक पेज ही लिखो, पर लिखो दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। इवन वन पेज भी लिख रहे हो बट लिखना बहुत जरूरी है, राइट इट। आपका बहुत बेनिफिट होगा। हरजिंदर, दिस इज गुड। सी, सारे अपने एडॉक मेंबरशिप, नीति आयोग, अच्छे से पूरा टॉपिक तैयार हो गया। फैंटास्टिक। आईएसआरओ पे भी हमने बनाया और इसमें डायग्राम भी है। वेरी नाइस। अंकित देखो कितना बढ़िया कॉपी हो गया है, हैंडराइटिंग भी कितना अच्छा है। नीति आयोग, वेरी नाइस। की ऑब्जेक्टिव्स, वेरी गुड। इसरो पे भी हमने बनाया, सारा अपना जितनी भी लर्निंग्स हैं उसको कंसोलिडेट कर लिया। डायग्राम वर्क भी है, ज्योग्राफी, वेरी गुड। तो ऐसे हमें डेली 5-6 पेजेस रोज लिखने हैं हमें। देन नंदिनी, दिस इज गुड। सी, नीति आयोग, ऑब्जेक्टिव्स, वेरी गुड। स्ट्रक्चर, वेरी नाइस। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करना है। और पुराने जितने भी कॉपीज हैं वो घूमने नहीं चाहिए, उनको आप फाइल करते जाओ, फाइल में उनको अटैच करते जाओ। ओके, सो ये 18th ऑफ जुलाई है। आज आंसर राइटिंग नहीं है, कल हम 19th ऑफ जुलाई देखेंगे, फिर संडे को 20th ऑफ जुलाई देखेंगे। तो हम ऑन ट्रैक आ जाएंगे, मंडे तक हम ऑन ट्रैक आ जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।